So friends, let's go on for series connection of capacitors. Let's obtain the formula for effective capacitance. Now यहाँ पे suppose ये पहला कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2 और थर्ड कैपेसिटर having capacitance C3. All the three are connected in series across a battery. Suppose battery का voltage supplied is V. A battery will supply the charge. As you know, series connection is the सबके charge same रहेगा. Charge on each capacitor is same. तो सबसे पहले तो यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे इसका सीरीज कनेक्शन का. व्हेन मोर देन वन कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ लाइन देन सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं. पहली, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. दूसरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वन इज डिफरेंट. सपोज यहाँ पे अक्रॉस C1 पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, अक्रॉस C2 सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज V2, एंड अक्रॉस C3 सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज V3. So we get potential difference across C1 is V1, across C2 is V2, across C3 is V3. Let's obtain the expression for effective capacitance of this connection. Here we have the potential supplied to the battery as V1 plus V2 plus V3. Okay, total potential supplied V1 plus V2 V3 is from the battery. Now, as C1 is equal to Q by V1, therefore V1 equal to Q by C1. Similarly, we have Similarly, we have V2 equal to Q by C2 and V3 equal to Q by C3. पहला वाला डिटेल में बता दो, फिर बाद में बाकी सिमिलरली में डाल दो. Putting all these values in equation 1. Let's say using set of equations 2 in 1, putting 2 in 1, what we have is V is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. राइट साइड पे Q कॉमन निकल जाएगा, लेफ्ट साइड पे भेज देते हैं V अपॉन Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. Now, if effective capacitance of the combination of given series combination is series बोलते हैं, then we have CS is equal to Q by V. पूरे का इफेक्टिव वोल्टेज V and चार्ज Q, तो C का इक्वल टू Q by V. तो therefore V by Q will be equal to 1 upon CS. Let's say equation number 3. Equation 4. Comparing equation 3 and 4, what we get is 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Is this clear, the derivation? So that's how we get the effective capacitance of series connection. Is it clear? Now, इसमें एक और चीज ऐड करते हैं एनर्जीज के बारे में. फर्स्ट में एनर्जी कितनी होगी C1 में, तो एनर्जी के फॉर्मूला कौन से थे एनर्जी स्टोर के, हाफ CV² एंड दूसरा Q² बाय 2C. कौन सा यहाँ वाला यहाँ पे ज्यादा सुटेबल रहेगा? Q being same for each one, तो we'll be using the second formula. Now total energy U will be equal to Q² by 2CS for इस कनेक्शन के लिए. या फिर एक काम करते हैं, total energy U will be equal to Q² by 2CS. Therefore Q² by 2, CS को लिखेंगे 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay, opening the bracket, Q² by 2 C1 plus Q² by 2 C2 plus Q² by 2 C3. ये तो एनर्जी स्टोर्ड इन 1 हो गया, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड, ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन 3, तो U1 प्लस U2 प्लस U3. यानी कि इससे क्या पता चला कि एनर्जी स्टोर्ड, इफेक्टिव एनर्जी स्टोर्ड इन द एंटायर सिस्टम कनेक्शन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड, इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड. यानी इंडिविजुअली हर एक में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसका टोटल मार दो तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो गई वो मिल जाता है. ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग सीरीज कनेक्शन ऑफ capacitors.
let's go on for parallel connection of capacitors. After completing series, now let's go for parallel connection of capacitors. Parallel connection क्या होता है उसका पहले डेफिनेशन, एक कैपेसिटर, another capacitor, capacitance C1, capacitance C2, and a third capacitor, suppose capacitance C3. All the three connected in parallel across two common points. That's a parallel combination. Let's connect it to a battery. इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, इससे बैटरी का कनेक्ट करना पड़ेगा. सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज V. बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया सपोज Q, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ. C1 के लिए सपोज Q1, एक प्लेट पे प्लस Q1, दूसरे पे माइनस Q1. C2 पे सपोज Q2, तो प्लस Q2 माइनस Q2. C3 पे प्लस Q3 minus Q3. So we write the characteristics as Q is different on each capacitor as well as V is same. Okay, now let's obtain the expression for effective capacitance. Obtain an expression for effective capacitance of this connection. Now here we know that as charge distributed Q1, Q2, Q3 in three parts. So we have Q is equal, total charge delivered by the battery is Q, which is Q1 plus Q2 plus Q3. अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, C इक्वल टू Q बाई V. तो Q को क्या लिखेंगे, CV. तो here will be पहले बैटरी के लिए, पहले कैपेसिटर के लिए C1V, दूसरे के लिए C2V, तीसरे के लिए C3V. अरे सर V1 V2 V3 नहीं लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम. ओके, टेकिंग आउट V कॉमन एंड टेकिंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो देयरफॉर Q बाई V, दो स्टेप एक साथ ले लेते हैं. V कॉमन ले लिया एंड लेफ्ट साइड पे भेज दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3. फिर एक बार Q बाई V तो C होता है, as Q बाई V is C effective, that is C पैरेलल बोल देते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस. तो therefore इक्वेशन क्या बना, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. स्वीट एंड सिंपल. ओके, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. एनर्जी स्टोर की बात करें तो एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कौन सा सुटेबल रहेगा, तो एनर्जी स्टोर के दो फॉर्मूला थे, Q स्क्वायर बाई 2C और दूसरा हाफ CV स्क्वायर. पैरेलल कनेक्शन में V सेम होता है, तो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ CV स्क्वायर वाला, हाफ CV स्क्वायर. यहाँ पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है तो CP दैट इज हाफ CP यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 into V square. Opening the bracket, what you get is half C1 V square plus half C2 V square plus half C3 V square. ये तो हो गया C1 V square, हाफ CV square. तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला C1 में, C2 में, C3 में. तो C1 में स्टोर तो U1 बोलते हैं, C2 में स्टोर तो U2 बोलते हैं, C3 में स्टोर तो U3 बोलते हैं. तो टोटल एनर्जी स्टोर कितना है, तीनों का एडिशन. सर सीरीज कनेक्शन में भी एडिशन आया था, पैरेलल में भी एडिशन ही आता है. यानी वेदर इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेदर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज. उसमें ऐसा नहीं कि सीरीज एंड पैरेलल वाला वो एडिशन ऑफ इनवर्सेस वाला फॉर्मूला आएगा, नहीं. एनर्जी स्टोर तो दोनों केस में इट इज सिंपली एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज, राइट. सो दैट कंप्लीट्स अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स. नोट्स में हमने 34 से लेके 37 तक कंप्लीट कर दिया, 34, 35, 36, 37 चार कंप्लीट हो गए. यानी आपके नोट्स में अप टू क्वेश्चन नंबर 40 वी आर फिनिश्ड. आगे क्या करना है हमको नेक्स्ट, तो ये तो हमने अभी सब सारी बातें की और कैपेसिटर की कर दी. कैपेसिटर की बातें करनी है. अभी तक हमने क्या किया था, बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देयर वाज नथिंग एट ऑल. बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देयर वाज नथिंग, यानी कि एयर या वैक्यूम लेके बैठे थे, सब में हमने एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी लेके काम किया. व्हाट हैपेंस इफ बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सम मटेरियल इज फिल्ड, अगर बीच में कोई मटेरियल फिल करे तो क्या फर्क पड़ता है. दैट इज व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट, स्टडिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. थैंक यू.